اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نقوش امامت میں ہم لوگ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پڑھ رہے ہیں، اور اس زندگی میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ کتنے لوگ تھے، جیسے ابو مسلم نے صحیح ہے امام کی جانب، اور عمر ابن اشرف، ابو بکر نہیں، عمر ابن اشرف، اور جناب عبداللہ جو بیٹے تھے کس کے، امام زین العابدین علیہ السلام کے، ان تینوں کو لیٹر بھیجا اور انہیں خلافت کی دعوت دی۔ لیکن امام نے جب دعوت دی گئی اس خط کو کیا کیا، آگ کے حوالے کر دیا۔ آج ہم لوگ پڑھیں گے کہ قیام بنی عباس کے رہبروں کی تجویز کو امام نے کیوں مسترد کر دیا؟ مسترد جانتے ہیں مولانا؟ یعنی ترک کر دینا، انکار کر دینا، قبول کا نہ کرنا۔ علت کیا تھی، وجہ کیا تھی، جوہر سمجھنا ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ کہہ رہے جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی طرف توجہ کرتے ہوئے پہلی نظر میں ابو سلمہ اور ابو مسلم کی تجویزوں کے مقابلے میں امام کے موقف کا تجزیہ کرنا ذرا مشکل نظر آتا ہے کہ امام نے یہ موقف کیوں اختیار کیا۔ کیونکہ بظاہر اس تحریک میں مذہبی عوامل کا قوی اثر تھا۔ کیا معنی ہوگا مولانا اس کے؟ صحیح ہے کہ جو یعنی کیا مطلب ہے کہ بظاہر اس تحریک میں مذہبی عوامل کا قوی اثر تھا، یعنی یہ جو بنی عباس کی طرف سے احتجاج بلند کیا گیا تھا بنی امیہ کے خلاف، وہ سیاسی کم اور مذہبی زیادہ تھا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا نعرہ ہی جیسے میں نے آپ سے کہا کیا تھا، یا لطارات الحسین۔ تو یہ سیاسی نعرہ ہے کہ مذہبی نعرہ ہے؟ اب تو یہ جڑا ہوا ہے۔ تو کہنے کیونکہ بظاہر اس تحریک میں مذہبی عوامل کا قوی اثر تھا، چونکہ انہوں نے جو نعرے اپنے لیے منتخب کیے تھے وہ سب کے سب اسلامی تھے، جو اقوال ان کے پرچموں پر لکھے ہوئے تھے وہ سب قرآن کی آیتیں تھیں، اور وہ ایسا ظاہر کرتے تھے گویا وہ اہل بیت علیہ السلام کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اور ان کا مختار نامے میں کہاں سے آ جائے گا یہ وہ نعرہ، وہ جو مختار نامہ آپ دیکھ رہے ہیں، مختار نامہ کا قصہ پورا کا پورا آل زبیر و آل بنی امیہ کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ صحیح ہے، اس میں کوئی دخل نہیں ہے، چونکہ وہ جناب مختار کی شہادت ہے جس سن 68 ہجری میں، 67 یا 68 ہجری میں غالباً جہاں تک یاد آ رہا ہے، یعنی 70 سے پہلے ہے۔ تو ایسی صورت میں وہ پوری حکومت ان کی کہاں تک ہے، 132 تک ہے۔ تو وہ جو دور دکھایا جائے گا مختار نامے میں وہ دور بنی امیہ کا دور ہوگا، یا مکے کے اندر جو عبداللہ ابن زبیر نے حکومت کر لیا تھا وہ آل زبیر ہے۔ مصعب ابن زبیر کون ہے؟ آل زبیر، جس نے جناب مختار کو کیا کیا، قتل کیا ہے، ان کے ذریعے سے جناب مختار کی شہادت واقع ہوئی ہے۔ صحیح ہے، اور اس نے بعد میں کوفے پر قبضہ کیا ہے۔ ہاں، یہ جو نعرہ ہے یہ توابین کا بھی نعرہ تھا۔ کون؟ توابین، یعنی وہ لوگ کہ جو لوگ امام کی نصرت میں کربلا کے میدان نہیں جا سکے تھے، یہ ان کا نعرہ تھا۔
اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر کے خون ناحق کا انتقام بنی امیہ اور بنی مروان سے لیں۔ وہ اپنے انقلاب کو اہل بیت سے مرتبط کرنے کی کوشش کرتے تھے، اگرچہ انہوں نے ابتدا میں اس خلیفہ کا نام مشخص نہیں کیا تھا جس کی طرف وہ لوگوں کو دعوت دے رہے تھے کہ وہ خلیفہ کون ہوگا، یہ جدوجہد، یہ لڑائیاں کس کے لیے ہیں، کس کو خلیفہ بنایا جائے گا، امام جعفر صادق علیہ السلام کو بنایا جائے گا یا کسی اور کو بنایا جائے گا۔ لیکن ان کا نعرہ یہ تھا الرضا من آل محمد، کہ ہمیں کیا چاہیے، محمد والی محمد کی رضا چاہیے، محمد والے محمد کی رضا چاہیے، رضا یعنی چاہیے۔ خاندان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے منتخب شخص کے لیے بیعت حاصل کرنے کی غلط سے قیام کیا ہے۔ ان تمام باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ عباسیوں کا قیام اسلامی اہداف کے لیے تھا، لیکن اگر واقعات میں تھوڑی سی دقیق نظر کریں، دقیق کس کو کہتے ہیں، باریک، صحیح ہے، باریک بین، باریک بینی سے یعنی دقت کے ساتھ کسی چیز کو دیکھنا ہے، باریکی سے کسی چیز کا جائزہ لینا، تو امام علیہ السلام کے موقف کی اصل علت کو سمجھ جائیں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جانتے تھے کہ قیام کے رہبروں کا مقصد صرف اقتدار حاصل کرنا، ہاں ناخن کٹ گیا بیٹا تمہارے، جی، کہ جو لوگ بنی عباس کے ہیں ان کا کام کیا ہے، صرف اور صرف اقتدار حاصل کرنا۔ اگر وہ اہل بیت کی طرف داری کا نعرہ لگاتے ہیں تو صرف محبان اہل بیت کی حمایت حاصل کرنے کی غرض سے، یعنی ایسے نعرے کہ جو اہل بیت آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت درشاتے ہیں، تو یہ حمایت کس لیے ہے، صرف اس لیے تاکہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں کیا کریں، ان کی ہمارے فیور میں ہو جائے، ہمارے فیور میں ہو جائیں۔ تاریخی روایات واضح طور پر اس بات کی گواہ ہیں کہ ابو سلمہ خلال نے خراسان کی فوج کے کوفہ پہنچنے پر سیاسی امور کی باغ ڈور اپنے ہاتھوں میں لے کر سیاسی اور فوجی عہدوں کو اپنے طرفداروں میں بانٹنا شروع کر دیا۔ یہ چاہتا تھا کہ ایک علوی خلیفہ کو منتخب کر کے حکومت کا اصلی اقتدار اپنے ہاتھوں میں رکھے اور خلیفہ بس صرف ظاہری اور نمائشی ہو۔ امام کو کیا کہتے بن جائیے، چونکہ سب کو عہدے اپنے مطابق بانٹ دیے اور اس کے بعد امام کو دعوت دے دی کہ آپ ہماری خلافت کو کیا کر لیں، قبول کر لیں، صرف وہ ایک اصلی خلیفہ بنانا چاہتا تھا۔ امام علیہ السلام جانتے تھے کہ ابو سلمہ اہل بیت میں سے ایک روشن چہرے کی تلاش میں ہیں تاکہ اس کے چہرے اور محبوبیت کو اپنے اہداف تک پہنچنے کی راہ میں استعمال کریں، جو اس کو محبوبیت حاصل ہے اس کی وجہ سے وہ لوگ کیا کریں، اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے مقصد کو پالیں۔ اور یہ آپ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ لوگ آپ کی امامت پر عقیدہ نہیں رکھتے، ورنہ اس بات کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ ایک ہی مضمون کے 3 خط خاندان پیغمبر کے 3 شخصیتوں کے نام لکھے جائیں۔ کیا ضرورت تھی کہ ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی ان کے پاس بھی، یہ نہ مانے تو ان کے پاس، وہ نہ مانے تو ان کے پاس، یعنی انہیں صرف ایک آدمی چاہیے تھا کہ جو تخت پہ کیا کر سکے، بیٹھا سکے، لوگوں کو دکھا سکیں کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں اور حکومت اپنے اعتبار سے کرتے رہیں۔ امام علیہ السلام نہایت دانائی کے ساتھ، دانائی مانے چالاکی کے ساتھ، یہ بات جانتے تھے کہ قیام کے اصلی نقشہ نویس کس کو بولتے ہیں، لکھنے والے، ہاں۔ السلام علیکم آقا۔ وعلیکم السلام۔ عرشی سحر حسن، ٹھیک ہے، کہ اصلی نقشہ نویس بنی عباس ہیں۔ بھئی یہ پورے قیام کس کی وجہ سے ہو رہا ہے، بنی عباس کی وجہ سے، بنی عباس۔
اور جی उनका मतमए नजर हुक्मरानी और इख्तिदार की अपनी तमन्नाएं बरलाने के सिवा कुछ नहीं। मतमए नजर यानी जो उनकी निगाहों में है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है कि हुकूमत को हासिल करें और इख्तिदार को अपने कब्जे में ले लें। उन्होंने अबू मुस्लिम, अबू सलमा जैसे दूसरे अफराद को अपना आलाकार बना रखा है। इमाम जानते थे कि वो अनकरीब उस शख्स को जो उनके काम ना आए या उनकी राह में रुकावट बने उसे नाबूद कर देंगे। बताया था ना कल, जी क्या करेंगे? जहां अगर वो अपनी मर्जी से हुकूमत चलाएंगे, इमाम अगर खलीफा होंगे और उनको अगर रोकेंगे टोकेंगे तो फिर क्या करेंगे वो? सही है, इमाम अगर उनकी हुकूमत में उनके दखलंदाजी देते तो क्या करेंगे वो? इमाम की इज्जत तो इकराम सामने से हटा देंगे। हटाएंगे, रास्ता जी से हटाने की जी कोशिश करेंगे। कोशिश जैसा कि करेंगे। अबू मुस्लिम, अबू सलमा, सुलेमान बिन कसीर और दूसरे अफराद के साथ हुआ। इमाम अच्छी तरह से जानते थे। अबू मुस्लिम खुद मारा गया मोना में। अबू सलमा के बारे में मुझे नहीं याद आता, लेकिन अबू मुस्लिम को सफ़ाह ने नहीं मारा, लेकिन मंसूर दवानिकी जैसे ही खलीफा बना उसने अबू मुस्लिम जिसकी वजह से उनको हुकूमत मिली उसी को रास्ते से हटा दिए, कत्ल करा दिया। जी अबू मुस्लिम खुरासानी को कत्ल करा दिया। किसने? मंसूर दवानिकी ने, सफा कि जिसने छठे इमाम जी को जहर दिया था। जहर दे दें। जी तो अब यहाँ तीन नाम हमें मिल रहे हैं कि जिनके साथ यही सुलूक हुआ है। वो मुस्लिम, अबू सलमा और सुलेमान बिन कसीर और दूसरे अफराद के साथ हुआ। यानी उनके साथ भी यही किया गया कि जो लोग उनको हुकूमत दिलवा रहे हैं उन्हीं को रास्ते से क्या किया? हटा दिया। इमाम अच्छी तरह से ये बात जानते थे कि अबू सलमा और अबू मुस्लिम जैसे अफराद फरेब का शिकार हो चुके हैं, इन्हें धोखा दिया जा रहा है और इस्लाम और अहले बैत और सिरात मुस्तकीम पर नहीं है। लिहाजा आप किसी भी उन्वान से उनकी मदद करने और उनके इक़दामात को मशरू और जायज बनाने के लिए राजी नहीं थे। इमाम की उनकी बात को कबूल करना इसका मतलब कि वो जो काम अंजाम दे रहे हैं वो सब सही है या नहीं सही है? नहीं। अगर इमाम उनकी बात को, दावत को कबूल कर लेते हैं तो इसका मतलब अबू मुस्लिम जो कर रहा है वो क्या है? सही है या नहीं? जी। क्योंकि इनकलाब के सरदार आपके मकतब के अफराद नहीं थे, यानी वो शिया नहीं थे, अहले बैत के चाहने वाले नहीं थे। वो लोग इंतकाम लेने की कुदरत हासिल करने और सख्ती बरतने की राह में ज्यादती से काम लेते थे। किसी पर सख्त होते थे तो ज्यादा सख्त होते थे और ऐसे काम अंजाम देते थे कि जिनको कोई भी दीनदार मुसलमान गवारा नहीं कर सकता। जैसा कि तारीख में अबू मुस्लिम खुरासानी की खबासतों के खौफनाक नमूने मौजूद हैं कि जो हज्जाज बिन यूसुफ की खबासतों को जहनों में जिंदा कर देते हैं। हज्जाज बिन यूसुफ क्या करता था मौलाना? खुरेद था, बात बात पर खूब आता था। उसका कहना था जिस दिन मैं खून नहीं करता उस दिन मुझे नींद नहीं आती। समझ रहे हैं? ऐसे में क्या जो खून कर रहा है हर खून हलाल होगा? इमाम अब यहां पे देखें इस किताब में क्या है, मजीद इत्तला के लिए किताब सीरह पेशवायान की तरफ मुराजिया करें। यानी जो सीरह पेशवान किताब है इस किताब की तरफ पलटाने का मतलब ये है कि ये 387 से देखें कहां हमें पलटा रहे हैं, 390 तक। और ये हमारी किताब कितनी है? 251 पेजी की किताब है। इसका मतलब कि जो उर्दू में तर्जुमा किया गया है ये भी खुलासतन तर्जुमा किया गया है, मुकम्मल फारसी की किताब मौजूद नहीं है। समझ रहे हैं? क्योंकि क्यों कहते हैं भाई जिस किताब का तर्जुमा है ये क्या कह रहे हैं? मजीद इत्तला के लिए किताब सीरह पेशवायान की तरफ मुराजिया करें, जो कि ये तर्जुमा किसका है? सीरह पेशवायान का तर्जुमा है। इससे समझ में आता है कि ये मुकम्मल तर्जुमा नहीं है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की अपने एक सहाबी के साथ होने वाली गुफ्तगू इस मौजू को वाज़ेह कर देती है।
सुदैर सैरफी से रिवायत है कि मैं इमाम के पास पहुंचा और आपसे कहा क्यों बैठे हुए हैं, यानी क्यों खामोश बैठे हैं। इमाम ने फरमाया है सुदैर क्या वाक़या पेश आ गया है। सुदैर ने कहा आपके दोस्तों और शियों की कसरत के बारे में बात कर रहा हूं। इमाम ने पूछा भला कितने अफराद होंगे, कितने ज्यादा हो गए। सुदैर ने जवाब दिया 1,00,000 अफराद है मौला, जो आपके चाहने वाले। इमाम ने फरमाया 1,00,000 अफराद। सुदैर ने जवाब दिया हाँ शायद 2,00,000 अफराद, एक नहीं बल्कि 2,00,000। इमाम ने 2,00,000 अफराद। सुदैर ने जवाब दिया हाँ, और शायद आधी दुनिया आपके साथ है। इस गुफ्तगू के बाद इमाम सुदैर के साथ यंबा गए। यंबा एक जगह गए, वहां पर बकरियों के गल्ले को देखा। गल्ला समझते हो, बकरियों का एक झुंड। और फरमाया है सुदैर अगर हमारे दोस्तों और पैरवी करने वालों की तादाद इन बकरियों के बराबर भी होती तो हम घर में न बैठते। करे तुम आधी दुनिया कह रहे हो, सही है। ये जो बकरियां चर रही हैं इतने भी हमारे चाहने वाले मौजूद नहीं है होते जी। तो आज भी शियों की कसरत है या नहीं है, लेकिन अमली मैदान में कितने हैं पायदार ये हम नहीं जानते। सही है, किसी का इम्तिहान तो नहीं ना हुआ, ना हमें चेक किया गया, ना आपको चेक किया गया, ना कोई हमने इम्तिहान के बारे में। हाँ फिलिस्तीनी का मसला ले लें, और दुनिया में न जाने कितने मसाइल हैं। हम आपस में एक दूसरे से उलझे रहते हैं। इस्लामी तालीमात के हम कितने पैरोकार हैं। जी। सही है, अगर आप सुबह से शाम तक घर से निकलने से लेकर घर में दाखिल होने तक, लैट्रीन में जाने का, निकलने का, सोने का, सही है, खाने के, पीने के, जिंदगी के कौन से आदाब हैं जो अहले बैत अलैहिस्सलाम से मरवी नहीं है, हम कितनी पासदारी उनकी करते हैं। जाए कि आज अवाम बुनियादी मसाइल से दूर है। न जाने कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते हैं रोजा नहीं रखते, कितने ऐसे हैं जो न नमाज पढ़ते हैं ना रोजा रखते। सही है, सबके पास अपनी अपनी इल्लतें हैं, सबके पास अपनी अपनी वजह हैं। सही है कि मैं ये करता हूं तो मैं वो करता हूं। एक इंसान को मैंने देखा कि काम करने के लिए, दफ्तर जाने के लिए, 8 से 10,000 रुपए कमाने के लिए सुबह 4 बजे उठ के चला जाता है, लेकिन फिर भी नमाज नहीं पढ़ता। जी। घर में टिफिन बीवी बना के दे रही है, वो लेके जा रहा है कितने 9,000 की नौकरी के लिए, 8 से 10,000। क्यों? अदम तवज्जुही। सही है, मुतवज्जे न होना। जो लोग नमाज पढ़ते भी हैं वो उनकी क़िरात कितनी दुरुस्त होती है। सही है, कुरान कितना सही होता है, अवाम कितनी बेदार है। देखे ना, हर कोई अपने अपने कस्बे करिए को देखे, शहर को देखे, वहां के लोगों के हालात को देखे, कौन कितने मसाइल से आगाह है, जमात में कैसे शरीक होना है, कैसे नहीं होना है। नमाज में कोई भूल हो जाए तो क्या करेंगे, किसे पता है। मसाइल जल्दी जल्दी 2 रकत पढ़ी चल दी है। जिसने पढ़ी है तो यह है कि जिन्होंने जो पढ़ते हैं उनका मामला है, और न पढ़ने वालों की तो माशाल्लाह सही है तादाद है। पूरी शब्बेदारी होगी, मार भीड़ पब्लिक नजर आएगी आपको। सुबह की नमाज में अगर आप देखेंगे तो पता चला 2-4 बुढ़े नजर आ रहे हैं, बस जिनके पैर कब्र में लटक गए हैं, उन्हें अपना अमाल का खौफ है। सब जो रात में थे वो कौन थे? वही शिया थे ना। हमें इतनी तौफीक नहीं होती कि हम क्या करें, उस तरफ मुतवज्जे हों। तो इमाम क्या कह रहे हैं, बकरियों की तादाद के बराबर भी हमारे चाहने वाले नहीं है।
अगर इतने भी होते तब भी हम घर में नहीं बैठते। ना बैठते हैं। सोचिए इमाम का ज़ुहूर क्यों नहीं हो रहा है? हाँ है या नहीं? अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। आपकी इन बातों से नतीजा निकलता है कि इमाम का वाकई नजरिया ये था कि सिर्फ हुकूमत को हाथ में ले लेना काफी नहीं है, जब नहीं तक है। हुकूमत को मुख्तलिफ ताकतों और लोगों में आगाह अफराद की हिमायत हासिल न हो। ना। इनकलाब और इस्लामी इस्लाह का प्रोग्राम अमल में नहीं आ सकता। ऐसी ताकतें और ऐसे बाखबर अफराद हुकूमत के साथ हों कि जो हुकूमत के मकासद से बाखबर हों बाखबर और है। उसके नज़रियों पर ईमान रखते हों और उसकी हिमायत की राह में कदम आगे बढ़ाएं। आम लोगों के लिए हुकूमत के मौक़िफ़ों की वजाहत करें और हादसात की हवाओं के मुकाबले में पायदारी और मुकावमत का मुजाहिरा करें। यानी जब मुसीबत आ जाए तो ऐसा ना हो कि वो उसी के खिलाफ, इमाम के खिलाफ उठ खड़े हों, बल्कि वो इनका हदफ इतना वाज़ेह हो कि ये हुकूमत का हदफ क्या है। सही है। उस्मान बिन हुनैफ के बारे में मिलता है कि जब इमाम ने उनको गवर्नर बनाया, वो खेतों में काम कर रहे थे और जब मस्जिद में ऐलान किया गया वो वहां मौजूद नहीं थे, तो उनका बेटा दौड़ा दौड़ा आया खेतों में, अब्बा आपको मौला ने गवर्नर बना दिया, अब तो मेरी नई चप्पल आ जाएगी। जी। समझ रहे हैं? वही इमाम हैं कि जिन्होंने, इमाम ने कि अगर किसी अमीर के यहाँ दावत खा ली तो उस पर सरजनिश की है इमाम ने। अमीर के यहाँ दावत खाने पर सोचिए कितना बड़ा मरहला है हमारे और आपके लिए। कितने ऐसे शिया थे, इमाम अलैहिस्सलाम की हुकूमत कूफे में थी और इमाम की अदल और सदाकत और उनकी सख्ती जो थी उसमें, उसको देखते हुए उनके चाहने वाले कूफा छोड़ के चले गए थे कि इमाम की निगाह पड़ेगी तो ठोक देंगे। सही है, कुछ कह देंगे, इससे अच्छा है कि कूफा छोड़ दो। छोड़ दे। नहीं कहते? कहीं ऐसा ना हो कि इमाम का ज़ुहूर हो कल को और यासीन हुसैन के यार सामना सामना ना हो तो बेहतर है, किनारे ही किनारे रहो, दूर दूर रहो। मुमकिन है कि नहीं है? इमाम अलैहिस्सलाम की गुफ्तगू से पता चलता है कि अगर इमाम के लिए अपने दोस्तों और अपनी ताकतों पर भरोसा करना मुमकिन होता कि जो कामयाबी के बाद इस्लाम के मकासद को अमल में लाते, तो आप हमेशा मुसल्लह क़याम के लिए आमादा होते, लेकिन हालात और ज़माने के शराइत इस काम की इजाज़त नहीं देते थे, क्योंकि ये ऐसा काम था कि अगर कतई तौर पर शिकस्त का सामना न भी करना पड़ता फिर भी इसके नतायज की कोई जमानत नहीं थी, यानी कोई सिक्योरिटी नहीं थी। या दूसरे लफ्जों में अगर इन मौजूदा हालात में क़याम को शिकस्त न भी होती फिर भी इसकी कामयाबी हतमी नहीं थी। और इस तरह से ये कैसे किताब में सातवें इमाम की जिंदगी नजर नहीं आई मुझे, सीधे यहाँ ये नहीं, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है। आठवें इमाम का अली इब्न मूसा रज़ा आ रहा है जी, पेजेस नहीं है इसमें। इमाम हारून के दौर में। हारून का दौर कहाँ आएगा जी? मामून रुकिए, बाद में देखें, कुछ आगे पीछे तो नहीं होंगे। अजीब मामला है यहाँ इमाम हज़रत मूसा काज़िम शायद नेम चेंज हो गया ऊपर है। मामून के तरफ से इमाम को खुरासान की दावत पेश नहीं चेंज है, ये हो गया है यहाँ कुछ। ये शायद आगे होगा, देख लेता हूँ।
عنوان مامون کا، چونکہ امام ساتویں امام ہارون کے دور میں ہے، مامون کے دور میں ہے ہی نہیں. جی جی آٹھویں امام کا تو کہ دونوں اسی میں مکس ہیں، انہیں ڈھونڈنا پڑے گا لگ رہا ہے مجھے. شاید پیجز میں کوئی گڑبڑ ہو. امام اکرم آگے نہیں تو محمد تسلیم کچھ ہے، کچھ تو ہوا ہے اس کے ساتھ. پیج نمبر بتائیے جی، کہاں تک تھے ہم لوگ؟ 150. ابھی تو ہم لوگ ہیں ہاں یہ دیکھا، یہ بکریاں نظر آئیں. چلیے اس کو سرچ کریں گے. یہاں ہمارا یہ مکمل ہو رہا ہے. تو سمجھ میں آیا کہ ائمہ نے، جو اماموں کا دور تھا، اماموں نے قیام کیوں نہیں کیوں نہیں کیا ہے. جی ہاں. الحمدللہ رب العالمین.